Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are very fine and good at your home. So this is your lesson of computer science of class 9. So as you all know that we were discussing unit number 1, that is your problem solving. So problem solving, what is problem solving? Maheen, can you tell me? What is problem solving? As you can see, this is your book of class 9 computer science and IT. What is problem solving? Yes, right. Problem solving, प्रॉब्लम आपके पास कोई भी हो सकती है, रियल वर्ल्ड से रिलेटेड या आपके किसी प्रोग्राम से रिलेटेड, एंड यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. You have to draw the flowchart, you have to use algorithm, and then at that you have to do the coding. किसी भी प्रॉब्लम, रियल लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और या आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड. सो कंप्यूटर के मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, दे नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम वेल एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा स्टूडेंट है जो कंप्यूटर साइंस है, बिकॉज स्टीव जॉब ऑल्सो सेड students who are studying computer science, they can solve problems better as compared to the other students because they are already dealing with different kind of problems. They know how to solve the problems. So it will be very helpful for you in life how to solve the problems. So let's start the topic. Your unit number is 1 and we have already discussed what is flowchart, what is algorithm. So Habibullah, can you tell me what is flowchart? What is flowchart? Yes, right. Flowchart is basically your visual representation of your problem. आप जब अपनी प्रॉब्लम को easy words में या easy steps में with the help of different shapes, with the help of different symbols represent करते हैं, so that is known as your flowchart. Flowchart क्या होता है? जब आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम को by using different symbols और different shapes के थ्रू एक प्रोसेस में पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो that is known as your flowchart. As you can see, there we have a lot of symbols, टर्मिनल, प्रोसेस, डिसीजन, और हर सिंबल की एक स्पेसिफिक यूज़ है. लाइक अगर आपने इनपुट लेनी है देन यू हैव टू यूज़ दिस सिंबल. इसी तरह से अगर आपने स्टार्ट करना है देन यू हैव टू यूज़ दिस टर्मिनल. सो आफ्टर फ्लो चार्ट वी हैव एल्गोरिथम. सो नाउ व्हाट इज एल्गोरिथम? व्हाट इज एल्गोरिथम? Yes, right. Algorithm is basically your step-by-step representation of your problem. Algorithm क्या होता है? आप जब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं and if you are using statements or if you are using syntax, then you can do this with the help of algorithm. Same problem को first of all हम flowchart डिज़ाइन करते हैं. After designing the flowchart, we have to design the algorithm. And what is algorithm? Algorithm is basically used if you want to solve your problem. For example, if you want to prepare your tea, then you have to follow the steps. Like first you have to use the start tag, then you have to take the kettle, then you have to take all the ingredients like water, sugar, milk, etc. Then you have to boil. तो flowchart में आप क्या करते हो? आप अपनी सारी statement को, जितने भी आपके पास steps हैं उनको statements की form में लिख देते हो. So this is known as your algorithm, right? Flowchart में with the help of shapes और symbols के थ्रू आप represent करते हैं, और जो एल्गोरिथम है वो एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और डिटेल प्रोवाइड करता है फॉर योर प्रॉब्लम. इज इट क्लियर? सो एज यू कैन सी, रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो व्हाट इज द रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? Maheen, can you tell me? Right. First of all, you have a problem. It can be your daily life problem or it can be your computer problem. First you have your problem, then you have to design the flowchart of your problem. As you can see the flowchart, you have to represent your problem in points or in shapes. Then you have to represent your problem in sequence, in statements. You have to give the complete description of your problem. And at the end you have to design a computer program. You have to complete the coding, you have to complete the programming. So in this way we will complete the setup of problem solving. So we have already studied different flowcharts, algorithm, and now we are going to study okay. So we were discussing about identification and correction of errors.
टुडे द टॉपिक इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। If an algorithm failed during the verification, then it is important to identify the root cause of failure. वे कह रहे हैं कि अगर आपका जो algorithm है वो फेल हो जाता है एग्जीक्यूशन के दौरान या वेरिफिकेशन के दौरान, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कॉज। आपने उसकी जो फेलियर का कॉज है उसको आइडेंटिफाई करना है, देन यू हैव टू करेक्ट इट। सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजन, इट कैन बी लॉजिकल और इट कैन बी द सिंटैक्स एरर, राइट। सो यहाँ पर उन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दिए हैं, जस्ट लिसन केयरफुली। For example, to recruit students for our school volleyball team, we need students having height between 144 centimeter and 164 centimeter. To count qualified students, we develop the following algorithm. So इस क्वेश्चन में बेसिकली उन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वॉलीबॉल की टीम के लिए सिलेक्ट करने हैं। अब आपने नहीं देखना कि किसको वॉलीबॉल का मैच जो है वो आता है, किसको नहीं। यू डोंट हैव टू लुक दिस। आपने देखना है उनकी जो हाइट है ना वो 144 सेंटीमीटर से लेके 164 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इज इट क्लियर? यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर हाइट ऑफ योर स्टूडेंट्स, राइट। सो इफ वी विल राइट द एल्गोरिथम, हम देखेंगे हम उसका एल्गोरिथम किस तरह से लिख सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट स्टेप्स एंड देन हाउ वी कैन ड्रा अ टेबल। सो दिस इज बेसिकली योर ट्रेस टेबल एज यू कैन सी। ओके, so here first of all we have to start the algorithm। हमने अपना algorithm start किया, मैंने यहाँ पर अपना एक कीवर्ड लिखा है start। set count to 0, उसके बाद आपने क्या करना है, काउंट दे देना है 0 को। 0 को क्यों वैल्यू साइन किया है, बिकॉज आपने देखना है कि जो भी है आपके पास यूज़र है 154, उसकी हाइट है 144 है, जो भी है सबसे पहले उसको हम 0 सेट कर देंगे। स्टेप 3 में हमने करना है सेट ऑल हाइट्स टू, कि आपके पास हाइट क्या है 144, 140, 155, ये यूज़र्स की डिफरेंट हाइट्स हैं। एक स्टूडेंट है उसकी हाइट है 154 सेंटीमीटर, एक स्टूडेंट उसकी हाइट है 140 सेंटीमीटर, द नेक्स्ट स्टूडेंट हैज़ हाइट ऑफ 155 सेंटीमीटर, द नेक्स्ट वन हैज़ अ हाइट ऑफ 164, 144, 166, 160 एंड 143। 1 2 3 4 5 6 7 8, right? So we have 8 students with these heights. Now the question is, we have to identify the students having height between 144 centimeter to 164 centimeter, right? So अब आपने क्या करना है, इसकी हाइट के लिए ये इनकी हाइट होनी चाहिए इसके दरमियान। So हम एक कंडीशन सेट करेंगे for each student in the list all the heights. If heights is greater than 144, अगर वो कह रहे हैं कि हाइट 144 से बड़ी होनी चाहिए, एंड जो आपकी सेकंड पे हाइट है वो जो हाइट है दैट इज 164 और 164 के इक्वल और 164 से छोटी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि 164 से बड़ी नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट की हाइट, ठीक है। कहते हैं अगर ये है तो कंडीशन ठीक है, अदरवाइज सेट काउंट टू काउंट +1, अदरवाइज उसमें एक नंबर ऐड कर दो और नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ मूव करो, ठीक है। सो आउटपुट में आपके पास जो काउंट है वो वैल्यू डिस्प्ले होगी। सो हेयर एज यू कैन सी द अबव एल्गोरिथम वर्क्स। सो अब यहाँ पर क्या है, उन्होंने कहा कि आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट 144 से ज़्यादा होनी चाहिए और जो हाइट है 164 या उसके इक्वल होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। 164 से ज़्यादा जो हाइट का स्टूडेंट्स हैं, यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट दैट स्टूडेंट, राइट। सो आफ्टर दैट we have a trace table. Now we can identify, अगर हमारे पास कोई मिस्टेक है तो so we can easily identify with the help of trace table. अब trace table क्या होता है? So trace table is a technique used to test algorithm in order to make sure no logical errors occur while the algorithm is being processed. So with the help of trace table we can identify the errors. हमने algorithm जब डिज़ाइन किया, so if there is any kind of problem, there is any kind of error, we can easily find out with the help of trace table. So trace table में basically as you all know we have multiple columns, we have multiple rows. So ये जो आपके पास vertical हैं, these are known as your columns. As you all know, these vertical lines are known as your columns. Understand?
So and these horizontal lines are known as your, what we can say them? Habibullah, can you tell me? Right, these horizontal lines are known as your rows. So we have a column, हमारे पास एक टेबल है. टेबल इज बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. Okay, so now we will identify, I will just make it clear. ओके, सो एज यू कैन सी ये मेरे पास बाकी जितने स्टेप्स हैं वो हैं. देन यू हैव टू यूज़ द काउंट, कि मतलब आपके पास बारी बारी जब हमने सबको चेक किया वन बाय वन हर स्टूडेंट को, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 154 को चेक करेंगे, देन 140, देन 164, 155 एक्सेट्रा. तो आपने बताना है कि जो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएगा आपने वहाँ पर यहाँ पर इधर नंबर इंक्रीज़ कर देना है. ठीक है, काउंट को नंबर दे देना 1. जैसे इसमें अगला नंबर भी अगर सेलेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट 154 वाला, तो उसमें आपने ऐड करके तो 2 नंबर कर देना है. ठीक है, अगर 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं तो आपने यहाँ पर 3 दे देना है. अगर 4 हो रहे हैं तो इधर 4 दे देना. 5 स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं तो 5 कर दें. अंडरस्टैंड? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी इन स्टेप 1 में हमने क्या किया, कोई भी काम नहीं किया. स्टेप 1 में हमने कोई काम नहीं किया, हमने सिर्फ स्टार्ट किया अपने एल्गोरिथम को. तो स्टेप 1 में हमने सिर्फ डैश यूज़ करें बिकॉज हमने अपना एल्गोरिथम स्टार्ट कर दिया. यहाँ पर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की. तो ये जो डैश है इसका मीनिंग है कि हमने वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं बट वैल्यूज़ अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई. स्टेप 2 में सेट काउंट टू 0, कि हमने सबसे पहले वैल्यूज़ को दे दिया 0, कि फ़िलहाल मेरे पास कोई भी ऐसा यूज़र नहीं है जिसकी हाइट है इसके इक्वल हो राइट नाउ, क्योंकि हमने अभी अपने एल्गोरिथम को स्टार्ट किया तो उसको मैंने 0 दे दी. स्टेप 3, मैंने जितनी भी हाइट की वैल्यूज़ थी, कि मेरे पास वैल्यूज़ थी 154 से 140 और 143 तक, मैंने यहाँ पर ऑल हाइट्स इसमें दे दिया कि मेरे पास टोटल इतनी हाइट्स हैं. ठीक है, इतनी हाइट्स देने के बाद नेक्स्ट है स्टेप 4, फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स. स्टेप 4 में क्या किया कि मैंने अब उसको चेक करना शुरू किया. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने चेक किया जो मेरी रेंज है, फर्स्ट आ रहा है स्टूडेंट 154, क्या वो इसके दरमियान है 144 और 164 के दरमियान है. सो येस, 144 इज़ बिटवीन दैम. सो ये उसमें ट्रू होगी कंडीशन राइट. सो जैसे ही ट्रू होगी तो यहाँ पर 154 हो जाएगी हाइट और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1. इज़ इट क्लियर? वैल्यू मेरे पास इधर आ गई 1. आफ्टर दैट स्टेप 4 में हमने दोबारा से नेक्स्ट हाइट को सिलेक्ट किया. नेक्स्ट हाइट मेरे पास यहाँ पर आ रही है 140 और यहाँ पर भी मेरे पास है 140. अब मैं देखना क्या ये 140 इस कंडीशन के मुताबिक ठीक है, जो कि मेरे पास 144 और 160 के दरमियान है, 164 के दरमियान. इज़ इट बिटवीन दैम और नॉट? सो येस, सो नो, दिस इज़ नॉट बिटवीन दैम. सो यहाँ पर मेरे पास जो नंबर है वो 1 ही रहेगा, क्योंकि मुझे उस स्टूडेंट की हाइट चाहिए जिसकी हाइट 144 से बड़ी हो और 164 के इक्वल या उससे कम हो राइट. सो 144 से हाइट छोटी है 140, तो उसमें हम काउंट नहीं करेंगे. फिर हमने नेक्स्ट कंडीशन को वेरीफाई किया. नेक्स्ट इज़ 155. सो एज यू कैन सी 155 को मैंने जब टेस्ट किया तो 155 उसके दरमियान है, उस रेंज के दरमियान. यहाँ पर 155 उसके दरमियान है, तो हमने सिंपली यहाँ पर क्या कर दिया, एक और नंबर इंक्रीज़ कर दिया कि 2 स्टूडेंट्स हो गए हैं जो कि इन दोनों के दरमियान है. इज़ इट क्लियर? ओके, आफ्टर दैट मैंने नेक्स्ट नंबर है 164, मैंने उसको सिलेक्ट किया. अभी सिर्फ मेरे पास एक ये स्टूडेंट हुआ है और एक ये. फिर 164 को सिलेक्ट किया कि क्या वो उसके इक्वल है या उसके दरमियान लाई कर रही है 144 और 164 के. सो इज़ इट बिटवीन और नॉट? यस, 164 के इक्वल है. ये जो नीचे सिंबल है लाइन माइनस, दिस इज़ बेसिकली योर इक्वल सिंबल. सो ये भी इसके इक्वल है, तो मेरे पास यहाँ पर काउंट हो जाएगा 3. Is it clear? Okay. After that I will test next number, that is 144. So 144 भी ऑलरेडी उसके इक्वल है, तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी? सॉरी, आई हैव टू आइडेंटिफाई.
सो नेक्स्ट मैंने चेक किया 144, तो 144 बेसिकली मेरे पास जो मेरी कंडीशन है उसके मुताबिक ट्रू कंडीशन नहीं होती, बिकॉज मुझे हाइट 144 से बड़ी चाहिए, 144 नहीं, राइट। तो मेरे पास ये जो कंडीशन है यहाँ पर 3 रहेगा, द सेम वैल्यू। उसके बाद मैंने चेक किया नेक्स्ट वैल्यू इज़ 166, तो क्या ये वैल्यू उस कंडीशन में फॉल कर रही है कि 144 से आपकी जो हाइट है वो बड़ी होनी चाहिए और 164 के इक्वल या उससे कम होनी चाहिए। इज इट ट्रू? नो, 166 164 से ग्रेटर है, तो मैं सिंपली इसको क्या कर दूंगी कि मेरे पास ये काउंट में इंक्लूड नहीं होगा। अंडरस्टैंड? ओके, सो आफ्टर दैट उसके बाद में नेक्स्ट है मेरे पास 160, तो क्या 160 उसमें इंक्लूड हो रहा है? येस, दैट इज़ बिटवीन 144 एंड 164, सो मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज़ 4 हो जाएंगी, ठीक है। सो उसके बाद एट द एंड आई हैव 143, तो जो 143 है वो बेसिकली 144 से स्मॉल है, सो आई विल नॉट इंक्लूड, और यहाँ पर मैं अपने टेबल को कंक्लूड करूँगी कि मेरे पास वो हाइट जो है 144 से कम है, सो आई विल नॉट इंक्लूड, तो मेरे पास सेम वैल्यू कैरी करेंगे हम। अंडरस्टैंड? सो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द एल्गोरिथम इज़ वर्किंग करेक्ट और नॉट। इज इट क्लियर? So what we have studied, first of all let's see what is verification and what is validation. वेरिफिकेशन क्या होती है? वेरिफिकेशन में यू जस्ट हैव टू वेरीफाई कि आपका जो सोल्यूशन है वो सेम आंसर उसी प्रॉब्लम का दे रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल आपने करना था 2 + 2, तो अब आपने एंड पर चेक करना है कि मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो सम होके आ रहा है या नहीं, ठीक है। मतलब मेरा फंक्शन जो मैंने ऑपरेटर यूज़ किया है प्लस का, क्या वही काम कर रहा है या नहीं, कि मतलब प्लस की जगह माइनस तो काम नहीं कर रहा। सो दैट इज़ योर वेरिफिकेशन। एंड व्हाट विल हैपन इन वैलिडेशन? वैलिडेशन में आपने चेक करना है कि जो आपके पास आंसर आ रहा है 2 + 2 का आंसर है 4, सो 4 जो आपके पास आंसर है वो आंसर करेक्ट है या नहीं, आपने उसको वैलिड करना है। ये तो नहीं है कि वो प्लस तो कर रहा है लेकिन मेरे पास आंसर में 4 + 4 उसने 10 दे दिया। सो दिस इज़ नोन एज योर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या होगा आपके पास, इफ़ आई विल राइट हियर विद द हेल्प ऑफ type text 2 + 2, so simply you just have to यहाँ पर अब आपने सिर्फ ऑपरेटर को आइडेंटिफाई करना है कि क्या मेरा ये जो ऑपरेटर है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं। सो यू जस्ट हैव, दिस इज़ नोन एज योर वैलिडेशन। इज इट क्लियर? यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई दिस ऑपरेटर, कि आपने जो ऑपरेटर यूज़ किया है या जो भी आप काम कर रहे हैं कि आंसर वही दे रहा है या नहीं। ये तो नहीं है कि प्लस की जगह आपने वो माइनस कर दिया है। और उसी तरह से जब आपने इसको करना है वैलिडेशन, तो वैलिडेशन में आपके पास क्या होगा, करेंगे 2 + 2 = 4, कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर 4 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। सो दिस यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ वैलिडेशन। सो यहाँ पर इस आंसर को फाइंड करने के लिए व्हाट वी कैन यूज़, वी कैन सिंपली यूज़ द आंसर ऑफ 4, राइट। सो वेरिफिकेशन क्या है कि आपने अपनी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको वेरीफाई करना है, क्या मेरे पास ये जो प्लस है ऑपरेटर में मुझे 2 + 2 करके मुझे सम का रिजल्ट मिल रहा है या किसी और फंक्शन का। सो दिस यू हैव टू वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ वेरिफिकेशन। सो दिस इज़ नोन एज योर verification. Now what is validation? Validation में you just have to identify कि आपने ये जो ऑपरेटर यूज़ किया है that is 2 + 2 = 4, तो ये जो 4 आपके पास आंसर आ रहा है this is your correct or not। ऐसा तो नहीं है 2 + 2 की जगह आपके पास प्लस तो काम कर रहा है लेकिन वहाँ पर आपके पास 5 आंसर में आ रहा है। So this is your validation. So now you just have to watch this video very carefully and you have to do this practice of क्वेश्चन, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप और इन गूगल क्लासरूम। एंड यू ऑल्सो हैव टू डू द होमवर्क ऑफ दिस लेसन, व्हाट इज वेरिफिकेशन एंड व्हाट इज वैलिडेशन। दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। What is the difference between validation and what is the difference between verification? Then you have to cover this topic. You have to write this definition also.
you have to give these both examples in your notebook, and then at the end you have to give this algorithm as your example, identification and correction of errors, कि हम अपनी correction और जो errors हैं उसको किस तरह से identify कर सकते हैं. And then you have to draw this trace table. So this is your homework in Google Classroom. Just do the practice, learn the concepts, and if you find any difficulty then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom.